So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss the Hindu analysis of 5th April. So I hope you all are aware that every day at 3 p.m. we come up with the Hindu analysis, which is generally taken by Govind sir. But on Saturday, I take the class. So I hope you all. So let us begin with today's class. So am I audible, visible? Everything is fine? If yes, then please write yes in the comments. अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप एक बार कमेंट्स पे yes लिख दो, so that we can begin the class. Okay, so आज जो है वो 5th अप्रैल है and today is Saturday. So let us begin the article that was on the first page. China hits back with 34% tariff on all US products. This we will be discussing because आजकल tariff काफी ज्यादा news में, so it is very much in the news. We will discuss that. Then another is both Lok Sabha and Raj Sabha has recently passed Waqf bill. So we will discuss about Waqf bill. तो हम लोग Waqf bill के बारे में जानेंगे, ठीक है? उसके बारे में हम लोगों ने क्लास लिया भी है, so I will explain where to watch that. और ये वाला भी बहुत important है. President withholds assent to anti-NEET bill. Okay, so all these three articles are very important for today. तो तीनों आर्टिकल आज की काफी ज्यादा important है. Okay, now let us first begin with this article. The first ये वाली article थी. China hits back with 34% tariff on all US products. तो एक्चुअली आई होप यू आर अवेयर, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, देखो ये यूएस है, ये चाइना है, ठीक है? जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, since the Donald Trump has come to power, he is imposing tariff after tariff. He is taking revenge that if you are putting tariff on my product, I will put tariff. But what is bad with tariff? Why is tariff not considered as very good? It is against the idea of free trade. Tariff में देखिए एक तरह का टैक्स हुआ, a sort of a tax. मान लो फॉर एग्जाम्पल, देखो why is tariff considered as bad? जैसे फॉर एग्जाम्पल, if India is exporting something and the value of that is let's say 100 rupees, वो 100 रुपए का सामान बेच रहे हैं अमेरिका में. So I'm not taking into account dollar, but I'm just saying that let's say it's rupees 100. Now, if the US government puts let's say 30% tariff, so the price of the same good in America will become 130. अभी इस मार्केट में 130 रुपए का बिकेगा, and because this 30 rupees will go to the government, US government, as a tax. Now, once it becomes 130, it becomes lesser competitive in the market. Why? Because it has become costly. तो अगर कोई कंट्री इंपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ लगा देती है, तो जो सामान बाहर से मंगवाया जा रहा है वो महंगा हो जाता है, और जब महंगा हो जाएगा तो लेस कंपटीटिव होगा, उसका बिकने का चांस कम हो जाएगा. इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. So same thing actually what happened was कि the US has put tax that from India also, from China also, कि अगर आपका जो export आ रहा है उस पर टैरिफ लगाएंगे, I'll put tariff. So China said कि okay, I will also put tariff whatever you will send. तो ये क्या हो रहा है? This is actually against the idea of globalization. इसको कहते हैं deglobalization. Is it clear? Because the idea of globalization was to have increased interaction with the rest of the world. तो ये अगर टैरिफ लगाने से एक तरह से बैरियर है ना, सो दिस इज एक्चुअली कंसीडर्ड एज अ सॉर्ट ऑफ अ ट्रेड बैरियर. ये हो गया एक तरह का ट्रेड बैरियर. सो ट्रेड बैरियर इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन. व्हाट वी कॉल इट एज डीग्लोबलाइजेशन. ये क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? यस और नो? जैसे आई होप यू आर अवेयर, बहुत सारी एजेंसी बनाई गई थी, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी टू इंश्योर दैट ग्लोबलाइजेशन शुड बी देयर शुड बी मोर इंटरेक्शन इन गुड्स and services and people-to-people interaction with the rest of the world. But after Donald Trump came to power and imposing tariffs and tariff wars, tariff war भी इसका नाम दिया जा रहा है. Okay, so these things are there in the news, and because of which there will be deglobalization. Okay, so that is what you should be knowing. So China ने भी hits back किया with 34% tariff on all US product. तो जो भी US का product आएगा उस पर 34% China tax लगा देगा. Of course, this will lead to US products price being increased in China's market, and it will lead to lesser competitiveness. ठीक है, तो ये लिखा है China announced on Friday that it will impose 34% tariff on imports of all US products beginning 10th April. Okay, part of a flurry of retaliatory measures. Retaliatory मतलब बदला लेने का. तो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया, यूएस ने इंपोज किया, सो चाइना ने कहा कि we will also impose. Okay, now अब डोनाल्ड ट्रंप की दलील ये है, ये इंडिया के केस में कहा था. फॉर एग्जांपल, इंडिया का ना एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, सो इंडिया एक्सपोर्ट्स मोर एज कंपेयर टू वी इंपोर्ट फ्रॉम अमेरिका. सो बेसिकली इंडिया हैज
इंडिया के पास क्या है, ट्रेड सरप्लस विद रिस्पेक्ट टू अमेरिका, ठीक है। सो हमारा यूएस से ट्रेड सरप्लस है, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से। इट मींस इट विल लीड टू इनकमिंग ऑफ मोर डॉलर्स, बिकॉज जब हम बेचते हैं बाहर तो हमारे पास डॉलर आता है, और जब हम इंपोर्ट कराते हैं तो डॉलर भेजते हैं बाहर, ठीक है। सो बेसिकली इफ वी हैव मोर एक्सपोर्ट देन इंपोर्ट, सो ओवरऑल ट्रेड सरप्लस इज इन आवर फेवर. Similar is the case with China. So China exports more and import less from America, ठीक है। ओके, तो इससे क्या होता है कि ऑफ कोर्स चाइना's ट्रेड सरप्लस इज आल्सो हाई, ठीक है। अगर आप देखोगे, देखो चाइना का एक्सपोर्ट देखो, इंपोर्ट फ्रॉम चाइना टू यूएस, है ना, यानी चाइना से यूएस जो सामान जा रहा है वो ज्यादा है, एक्सपोर्ट टू चाइना फ्रॉम यूएस, तो यूएस के पर्सपेक्टिव में देखो कम है ना, तो जो रेड वाला ऊपर वाला है ना, सो चाइना इज सेंडिंग मोर प्रोडक्ट्स टू यूएस, एंड ये नीचे वाला है, एंड यूएस इज रिसीविंग एंड यूएस इज सेंडिंग लेसर प्रोडक्ट्स। ऑफ कोर्स इससे क्या हो जाएगा कि ऑफ कोर्स there is a with respect to China has trade surplus with US, है ना। अगर आप उसको उल्टा लिखना चाहो तो रिवर्स लिख सकते हो, यूएस हैज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, ठीक है, तो उल्टा भी लिख सकते हो, दैट्स केस। टैरिफ अगेन, यस रतन कबीर, देखो टैरिफ तो ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल इफ चाइना, लेट्स से चाइना इज एक्सपोर्टिंग समथिंग टू यूएसए एंड इट्स वैल्यू इज लेट्स से डॉलर में $10, कुछ प्रोडक्ट बेचे वाले शर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब अमेरिका के पास आए, सो वंस इट रिसीव्ड अमेरिका हैज पुट लेट्स से $3 टैरिफ, मतलब एक तरह का टैक्स होता है, इंपोर्ट टैक्स। अब ये समझ लो एक तरह का इंपोर्ट टैक्स है, लाइक दैट। So what will happen? The value of the shirt will become $13 in USA. I'm excluding the transportation cost just for understanding, ठीक है। तो $10 का शर्ट जो चाइना से अमेरिका जा रहा था, क्योंकि अमेरिका ने $3 टैक्स लगा दिया, तो $13 का हो गया, तो महंगा हो गया ना। So if the Chinese export to America becomes costly, it is less likely, lesser competitive, less likely to be sold in American market. Is it clear? चाइना का कोई प्रोडक्ट $10 का शर्ट मान लीजिए गया अमेरिका, अमेरिका ने $3 का टैक्स लगा दिया, तो $13 का हो गया, तो $13 का बिकना मुश्किल हो जाएगा ना, $10 का तो ज्यादा आसानी से बिक जाता। यस, बिकॉज जितना महंगा होगा उस बिकने के चांस कम हो जाएगा। इज इट क्लियर रतन? आई होप इट इज क्लियर। दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ, तो इसीलिए एक दूसरे पर टैरिफ लगा रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज डी-डॉलराइजेशन, है ना। तो यूएस ने इंडियन इंपोर्ट्स पे भी टैरिफ वगैरह लगा दिया था 26% के अराउंड, ठीक है। दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। फिर चाइना ने और भी बहुत सारी चीजें, कमर्स मिनिस्ट्री इन बीजिंग आल्सो सेड इन नोटिस दैट विल इंपोज मोर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ऑन रेयर एलिमेंट्स, तो एक्सपोर्ट में वो सारे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा देंगे, इसे बता रहे हैं। फिर लोगों ने बताया यूएस सप्लायर्स आफ्टर इट डिटेक्टेड है चाइना's कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन सेड इट हैज सस्पेंडेड चिकन इंपोर्ट्स, तो जो अमेरिका से ही चाइना चिकन आता था उसको भी रोक लगा दिया है, बिकॉज उसमें चिकन में फिराजोलडॉन एक तरह का मेडिसिन है जो कि बैंड है चाइना में, वो पाया गया उस चिकन के अंदर, सो दैट इज व्हाई दे हैव रिजेक्टेड इट एंड ऑल। तो ये सब क्या है, ये सारा डीग्लोबलाइजेशन की तरफ इशारा किया जा रहा है। ओके, ऑल्दो स्टिल यू वोंट बिलीव, but you as far as I remember, US China is having almost somewhere around $700 billion trade, both huge trade है between US and China. The trade is the biggest, largest. ठीक है, go and find out what exactly it is, 600-700 billion dollar something है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। So still they have a huge amount of trade, ठीक है। Okay, first page में another article was Rajya Sabha clears new Waqf bill after 14 hours of debate. So it has passed in Lok Sabha and it has passed in Rajya Sabha also. Now, since I have already explained Waqf in this class, so I'm not going to repeat it. आपको करना क्या? This is very, very, very important. Star market. Just search it. देखो, ये actually हुआ था कि अगस्त में इंट्रोड्यूस हुआ था ये बिल. Last year अगस्त में this was introduced. अभी ये पास हुआ है. So this was passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. So this is the same bill which was introduced in August last year. ठीक है? तो यही वाला बिल को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है. So just ये search it. आप ये सर्च करना वक्फ करियर लॉन्चर लॉन्च डिस्कस के. You will get this video. Please watch it. This is very much in the news and that is why it can be asked. ये काफी ज्यादा न्यूज में है, तो बिल्कुल इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है. ठीक है. अब एक दो क्वेश्चन और है. Can you please tell me what is the meaning of the term वक्फ? ये मैंने इस क्लास में बताया भी. इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? Anyone? Literal meaning. If you know it, please tell me.
लेंडिंग, नॉट लेंडिंग, लेंडिंग तो कर्ज होता है ना, कर्ज तो वापस लिया जाता है, इट्स नॉट वक्फ लेंडिंग, इट्स द राइट वर्ड इज टू डोनेट, ठीक है, बिकॉज लेंडिंग भी क्या होता है, एक तरह का कर्ज हो गया वो, लाइक you have given a loan and you have to take it back, so it's the better word is donate, not lending, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे एक दो वर्ड होता है मुतवल्ली, ये जानते हो, बिकॉज ये सब वर्ड न्यूज में, वक्फ न्यूज में, इसलिए I'm asking, हाँ डोनेट, नाउ यू आर राइट, मुतवल्ली इज एक्चुअली द मैनेजर ऑफ द वक्फ, ठीक है ना, the one who like for example if a land has been donated for a mosque, so there should be someone who should be regulating that mosque and all, है ना, so that is called as mutawalli, ये सब की वर्ड से ही सब पता होना चाहिए आपको, religious and education purpose, yes, you're not right. Now first page में there was another article, president withholds assent to anti-need bill, withholds का मतलब क्या होता है, what is the meaning of withhold, withholding assent, withholds assent, क्या मतलब हुआ, please tell me anyone, what is the meaning of this, because since teaching is a two-way process I expect you also to answer me, क्योंकि दोनों तरफ टू वे प्रोसेस होता है टीचिंग, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी पार्टिसिपेट करो इसमें, आप बताओ आपको आता है नहीं आता, कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ withholding assent, not giving assent, yes you are not signing it, rejecting it, so basically what happens, I hope you are aware, when a bill is passed in generally in Lok Sabha or Raj Sabha, it goes to the president and president has different power, one power is giving assent, or withholding assent means rejecting the bill, ठीक है, जिसका मतलब हुआ withholding assent, जैसे इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, है ना, वीटो के टर्म्स पे रिजेक्ट कर दिया बिल, बट दिस इज नॉट अ बिल पास बाय लोक सभा राज्य सभा, रादर इट वाज पास्ड बाय अ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ तमिलनाडु, तो जब तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया, इट शुड हैव बीन साइंड बाय द गवर्नर, व्हाई इट केम टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास पहुंचाने की नौबत कैसे आई, देखो एक तो होता है गवर्नर कैन रिजर्व फॉर प्रेसिडेंशियल एसेट, आई थिंक आर्टिकल 200 या 201 में समवेयर मेंशन्ड है, जस्ट गो एंड रीड इट, that in some cases the governor can send it to the president for approval instead of he himself or she herself signing it, but कुछ cases में almost compulsory हो जाता है, and this is one case where it is compulsory and that is mentioned in article 254. now अब देखो, so to understand it first you should tell me education is in which list, पहले ये बताओ, is it in union list, state list और concurrent list, कौन से लिस्ट में है एजुकेशन, बताइए, I had discussed it, yes, you just not right, concurrent list, I had told you in this class, ये वाला क्लास आप देखा होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 42nd अमेंडमेंट, आई हैड टोल्ड यू 4-5 थिंग्स जो थे वो स्टेट लिस्ट से उठाकर under 42nd amendment it was put in concurrent list, and one of the thing was education, ये मैंने क्लास में बताया था, और मैंने ये तमिलनाडु वाला केस भी डिस्कस किया था, कि the chief minister of Tamil Nadu had said that it should be brought back, that is what he has demanded, yes Priya Mahapatra you are right, Shubhangi, Ratan Kabir you are right, ठीक है, so basically education concurrent list में, अच्छा now the first other thing is, so if there is a concurrent list, so both parliament can make laws and state legislature can make laws, right, so parliament में आता है लोक सभा and राज्य सभा, state में आता है legislative assembly and legislative council, but in case of Tamil Nadu we do not have legislative council, we have only legislative assembly. Acha, please tell me, if there is a law under concurrent list, if there is a law made by the parliament and there is a law made by the legislative assembly of a state, and both are conflicting, contradictory to each other, then which law will prevail, the law made by the parliament or the law made by the legislative assembly? ये एले मतलब legislative assembly है, पूरा लिख देता हूं, अगर कोई concurrent list में under concurrent list पार्लियामेंट ने भी लॉ बना दिया और लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की भी लेजिस्लेटिव असेंबली ने लॉ बना दिया और दोनों कंफ्लिक्ट कर रहा है, तो किसका लॉ चलेगा? यस शुभांगी, यू यस दैट, यू बोथ आर राइट, द आंसर इज पार्लियामेंट का लॉ चलेगा, यस यस रतन कबीर, प्रिया महापात्र, यू आर राइट, बट देयर इज वन एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 254, एक्सेप्शन ये है
कि once the parliament has made a law, after that let's say legislative assembly ने law बनाया and this law is sent to the governor, मतलब अगर दोनों है तो दोनों, both legislative assembly and legislative council made the law, sent to the governor, governor sends it to the president, and if the president signs it, then in that state only, in that state, the law made by the legislative assembly will prevail over the law made by the parliament. समझ में आया? अगर कोई कंकरेंट लिस्ट में पार्लियामेंट ने ऑलरेडी लॉ बना दिया है तो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलकर कोई लॉ बनाए तो उससे कन्फ्लिक्ट कर रही है, तो बना करके गवर्नर को भेजे और कहे कि गवर्नर प्रेसिडेंट को भेजे, और प्रेसिडेंट अगर साइन करते तब सिर्फ उस स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो कानून बनाया है, लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली ने मिलकर जो कानून बनाएगा वो वाला चलेगा. इज इट क्लियर? So the Tamil Nadu was doing the same under Article 254. So although there is a law, a need law at that, we have the the central government and all, है ना? So they have made, the Tamil Nadu Legislative Assembly has made the law because it wanted exception from that law. So the Legislative Assembly passed it, sent to the governor, and governor had to send it to the president. So when the governor sent it to the president rejected it. President ने reject कर दिया on the advice of most likely Council of Ministers. Council of Ministers मतलब Prime Minister और Council of Ministers की advice पर. Is it clear? ये बात समझ में आई? Is it clear? Because this has been very much in the news. Article 254. चौथा पढ़ लो. Is it clear, guys? Yes or no? Please tell me. ठीक है. No one is responding. What happened? Is it clear? Please keep on answering. Yes. Okay. Fine. फिर एक फर्स्ट पेज में आर्टिकल थी, पीएम मोदी एंड मोहम्मद यूनुस सेट असाइड डिफरेंसेस. सेट असाइड डिफरेंस मतलब जो भी इख्तिलाफ है, ये डिफरेंस है, उनको साइड किनारे करते हुए मुलाकात की है. डिस्कस माइनॉरिटीज सिचुएशन एंड बॉर्डर्स. ठीक है, मतलब कोई भी अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कुछ मतलब नहीं बन रहा कोई बात पे, तो उसको साइड रख करके लोगों ने डिस्कस किया. सो बेसिकली since regime etc. तो ये मैंने आपको बताया नहीं. I have already told you. I have made us that in August last year, the change of power happened. Sheikh Hasina resigned, and we are having interim advisor of Prime Minister, whatever you can say, Mohammed Yunus. तो BIMSTEC की summit हुई थी बैंकॉक में. BIMSTEC regional summit, ये full fledged summit नहीं थी. It was just a regional summit in Bangkok on Friday. Okay, रतन कबीर, मैं धीरे धीरे बताऊंगा. ठीक है. So where Honorable Prime Minister met the Chief Advisor of Bangladesh, Mohammed Yunus. ठीक है. अब आप पूछोगे सर व्हाट इज BIMSTEC? So basically I have made a video, just search this on YouTube, BIMSTEC career launcher, you will get this video. ठीक है, where I have discussed about BIMSTEC, Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation. ठीक है, इसमें there are 7 countries are the groupings of that. तो इसमें कौन कौन आते हैं मैं मैप में दिखा देता हूँ. So basically India is there, Bhutan, Bangladesh, this one is Nepal, Sri Lanka, Myanmar, and Thailand. So these are the 7 countries part of BIMSTEC. Okay, and recently the BIMSTEC regional summit happened in Bangkok, which is the capital of Thailand. So India से Honorable Prime Minister went, और बांग्लादेश से भी आए थे, है ना? That Chief Advisor Mohammed Yunus was there. तो दोनों में मुलाकात हुई. Both talked each other, and actually they talked. है ना? तो मोदी जी ने क्या कहा? So he talked about they requested for extradition of former Prime Minister Sheikh Hasina. So Sheikh Hasina, jo right now she is actually in India in exile because after the resignation she had to run away. तो उसकी भी बात की गई, extradition की बात की गई, she should be sent back and all. Then India had also raised issues of minorities and all there, that there should be safety of minorities, etc. Okay. There was a talk of 40 minutes. They met on cordial terms and exchanged commitments to bilateral ties. मतलब बहुत अच्छे से दोनों मुलाकात किए, बातचीत किए, यही सब बात हो रही है. ठीक है. So 6 BIMSTEC summit, regional summit के बाद ये सब बात हुई. Modi ji also met Prime Minister of Myanmar Min Aung Hlaing, first time since military came to power in 2021. तो ये भी आपको पता होगा कि म्यांमार में, यहाँ पर म्यांमार है पड़ोसी मुल्क, so यहाँ पर इंडिया है. This is Myanmar. On 1st February 2021, we have seen military coup coming to power. Military coup समझते हो? coup मतलब होता है dictator, like the military government.
military overthrowing democratic government and military came to power. So ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना वहाँ के मिंग ऑंग लांग, ये बेसिकली आर्मी चीफ थे, यही प्राइम मिनिस्टर बन गए बिकॉज ही इज एक्चुअली द मिलिट्री डिक्टेटर हु इज रूलिंग. ओके, तो जब से ये जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ 1 फरवरी 2021, उसके बाद पहली बार मोदी जी मुलाकात किए इनसे थाईलैंड और बैंकॉक में. नहीं सर, श्रीलंका हैज प्राइम मिनिस्टर रतन कबीर. जो बांग्लादेश की बात हो रही थी मोहम्मद यूनुस की, वी वर टॉकिंग अबाउट मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर, वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट श्रीलंका. चीफ एडवाइजर और प्राइम मिनिस्टर नहीं है, चीफ एडवाइजर मतलब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर टाइप समथिंग. ठीक है, ओके. सो बेसिकली दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. अभी हम लोग म्यांमार की बात कर रहे थे कि म्यांमार में मिलिट्री कू आया, उसके बाद जो आर्मी चीफ थे वही प्राइम मिनिस्टर बन गए. हिज नेम इज मिंग ऑंग ह्लांग. And since then, actually, first time Modi ji met that prime minister who is a military officer in Thailand, कोई BIMSTEC की summit पे. That is what you should be knowing. Okay. फिर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली से भी मुलाकात हुई फर्स्ट टाइम आफ्टर ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑन in July 2024. So these are the things being talked about. तो इसमें आपको BIMSTEC पता होना चाहिए क्या होता है. This you should know. BIMSTEC regional summit recently happened in Bangkok. So what is BIMSTEC? Please read about it, watch the video. इसको वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इसे मैंने डिटेल में BIMSTEC डिस्कस किया है. Now अभी एडिटोरियल चलते हैं. Let's move on to the editorial. A case for the global south in securing Ukraine peace. अब देखो इसमें क्या है, ये शशि थरूर ने मेन आर्टिकल लिखा और मिस्टर के डी माथुर ने. ओके, अब देखो ग्लोबल साउथ क्या होता है. आई हैड डिस्कस्ड मेनी टाइम्स बट ओके लेट मी शो इन द मैप. तो ये देखो, ये ब्लू वाला मैं लाइन बना दे रहा हूँ ब्लैक पेन से, इसको कहते हैं ब्रांड लाइन. ठीक है, और जो रेड वाला है, रेड वाली जितनी कंट्रीज देखो, इंडिया भी आए, दीज ऑल आर कॉल्ड एज ग्लोबल साउथ, यानी डेवलपिंग कंट्रीज को ग्लोबल साउथ लिखते हैं. और जो ऊपर ब्लू वाला है उसको कहते हैं ग्लोबल नॉर्थ, ये ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज के लिए. ठीक है, तो बता ये रहे कि जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, इसमें शशि थरूर साहब ये लिख रहे हैं उसमें ग्लोबल साउथ का रोल अच्छा खासा होना चाहिए था. ग्लोबल साउथ देखो, रशिया यूक्रेन और यहाँ रशिया और यूक्रेन का, तो साउथ ग्लोबल साउथ ये सब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया एंड अदर कंट्रीज का भी रोल होना चाहिए पीस इंश्योर करने में रशिया यूक्रेन वॉर में. दैट इज व्हाट ही इज राइटिंग. ओके, जैसा अभी रिसेंटली रियाद सऊदी अरब में मीटिंग हुई, दैट इज ब्रेक इंपॉर्टेंट. यस, ब्रेक्स इज इंपॉर्टेंट रतन कबीर. आप उस पर भी वी हैव मेड अ वीडियो, यू कैन वॉच इट. ठीक है, so that is what he is saying, that as devastating war in Ukraine edges for a fragile ceasefire recently enforced by maritime energies brokered in Riyadh. तो recently क्या हुआ था कि यूएस और रशिया के भी ऑफिशियल्स आए थे, और रियाद जो कि सऊदी अरब में, ठीक है, और सऊदी अरब भी ग्लोबल साउथ का ही पार्ट है. देखो मैं दिखाता हूँ, अरे सऊदी अरब क्या है ना, तो रेड वाला ये ग्लोबल साउथ कंट्रीज है ना. तो सऊदी अरब में रिसेंटली मीटिंग हुई थी जिसमें यूएस की पार्टी थे, रशिया यूक्रेन के सारे ऑफिसर्स थे, लोगों ने मिल करके डील साइन की. ब्लैक सी डील इसको कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे ब्लैक सी, तो ये यूक्रेन है, ये रशिया है थोड़ा सा, और ये वाला जो है ना, दिस इज ब्लैक सी. तो ब्लैक सी डील भी कहा जाता है बिकॉज ब्लैक सी से एक्सेस होता है यूक्रेन और रशिया की तरफ. ठीक है, यू कैन गो. सो दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, है ना. तो इसी की बात कर रहे हैं. रशिया हैज मेड इट क्लियर दैट नो नाटो ट्रूप मेंबर्स शुड बी वेलकम एंड मोस्ट ऑफ यूरोप इज ऑलरेडी इन नाटो एंड ऑल. तो अब देखो एक चीज होती है नाटो. पहले बात तो मैंने एक रशिया यूक्रेन वॉर पे क्लास बनाया है. If you are interested, just search this on YouTube and you will get this. तो ये देख लेना, आपको रशिया यूक्रेन वॉर का बैकग्राउंड पता चल जाएगा. ठीक है, you will get to know about रशिया यूक्रेन वॉर. देखो यही है जो यूएस सेज ब्रोकर डील इन ब्लैक सी विद यूक्रेन एंड रशिया, वही जो सऊदी अरब में डील हुई थी. यूएस ने भी उसमें के भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे इसमें. अब देखो इस आर्टिकल में ऑथर नाटो का वर्ड यूज कर रहे हैं. प्लीज रीड अबाउट नाटो. इसका भी मैंने वीडियो बनाया. दिस इज आल्सो वीडियो बाय मी where I have discussed that NATO एक military alliance है, US led military alliance. US plus European countries, इन लोगों का एक military alliance है. ठीक है, and this is actually not liked by Russia. Of course, Russia के against ही बनाया गया था उस टाइम पर, USSR होता था at that time. So that is why Russia is always have allergy with NATO. ठीक है, of course. ठीक है, तो इसी की बात करें.
कि व्लादिमीर पुतिन ने कई बार कहा है, रशिया ने क्लियर किया है कि नाटो मेंबर कंट्रीज वुड बी वेलकम, है ना, दैट नो ट्रूप्स फ्रॉम नाटो कंट्रीज इज वेलकम। यानी नाटो के कोई कंट्रीज की मेंबर्स, नाटो कंट्रीज जो है, उनकी एक मिलिट्री होती है नाटो ग्रुपिंग्स की, नाटो में जितने भी यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न मतलब अमेरिका वगैरह की ग्रुप है, ठीक है, इसमें मैंने डिटेल बताया है। इसमें यूक्रेन लेकिन नहीं आता है, यूक्रेन इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो। प्लीज वॉच दिस वीडियो, यू विल गेट टू नो नाटो इन डिटेल। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नाटो की कोई भी मिलिट्री यूक्रेन में नहीं आनी चाहिए, रशिया यूक्रेन वॉर में नॉट, राइट, दैट इज व्हाट ही हैज सेड। It is time for global South coalition of Africa, Asia, Latin America to rise on occasion and offer a lead UN-backed peace mission in Ukraine. तो यही उन्होंने कहा। ऑथर का जो मेन कहने का होता है कि जो साउदर्न कंट्रीज है ये वाली, इन्हें हम लोग इंडिया मिलके, अफ्रीका मिलके, लैटिन अमेरिका, ये लोग मिल करके एक यूनाइटेड नेशन में जाकर एक डील साइन करवाएं। So the global South, the developing countries' role should be there in ensuring Russia-Ukraine peace. तो यही मेन जो आर्टिकल का जो ये है समरी वो यही है, ठीक है, दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है, आई डोंट थिंक यू आर सपोज्ड टू गो इन डिटेल। मैंने ग्लोबल साउथ एक्सप्लेन कर दिया, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका ये लिख रहे हैं, इन लोगों का रोल होना चाहिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर है ना, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी है ना, ही इज हैविंग गुड रिलेशन विद रशियन प्रेसिडेंट आल्सो, ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम थ्योरेटिकल, लेट्स से इतना थ्योरी पे नहीं जाना आपको, ठीक है। एक दो चीज पता होना चाहिए, इंडिया का यूएन पीस कीपिंग मिशन है बहुत अच्छा, मतलब रिकॉर्ड अच्छा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज यूएन पीस कीपिंग फोर्स, यूएन पीस कीपिंग फोर्स, इनको ब्लू हेलमेट्स भी कहते हैं। तो जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल सुदान में, साउथ सुदान में, तो यूनाइटेड नेशन अपनी एक पुलिस भेजती है, इनका काम होता है पीस कीपिंग, ठीक है ना। तो उनके पास बहुत एडवांस वेपन नहीं होता है, मतलब बेसिक सेल्फ डिफेंस का वेपन होता है, लेकिन वो मेन मकसद है टू इंश्योर दैट देयर शुड बी पीस कीपिंग एंड ऑल। तो होता क्या है कि यूएन पीस कीपिंग में डिफरेंट कंट्रीज, बिकॉज यूनाइटेड नेशन की अपनी तो कोई पुलिस है नहीं, तो डिफरेंट कंट्रीज सेंड देयर ऑफिसर्स। इंडिया ने काफी मिशंस में काफी अपने मिलिट्री और पुलिस मैन भेजे हैं, ठीक है, जो कि विच आर पार्टिसिपेटिंग इन यूएन पीस कीपिंग मिशन, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। फिर जैसे वो एग्जांपल बता रहे हैं कि 1992 में जब यूगोस्लाविया वाला इशू हुआ था, तो सेक्रेटरी जनरल बुत्रोस गाली थे उस टाइम पर, उन्होंने इंडिया को की तरफ इशारा किया था और इंडिया को कहा था कि यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में लीड कीजिए। सो इंडिया हैज अ वेरी गुड रोल इन यूएन पीस कीपिंग मिशन एंड ऑल, दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। अब देखिए दूसरी आर्टिकल, अमेरिकन रिट्रीट, अगेन वी आर गोइंग, जो हम लोगों ने बिगिन किया था क्लास में, डी ग्लोबलाइजेशन, है ना, कि ग्लोबलाइजेशन की रिवर्स जा रहे, रिट्रीट वापस जा रहे, दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, ओके। तो अब इसमें बिगिन कर रहे हैं, ऑथर इज राइटिंग बाय गिविंग एन एग्जांपल ऑफ रिचर्ड निक्सन इन 1971 of temporary suspending US dollar convertibility to gold and suspending the idea of Bretton Woods framework. तो ये क्लास मैंने लिया है, आप जाके सर्च करना ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस करियर लॉन्चर, यू विल गेट टू नो। इसमें मैंने बताया है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का जेनेसिस, the genesis, the beginning of World Bank and IMF, that's called as Bretton Woods agreement. नहीं रतन कबीर, नाटो इज इन द न्यूज, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में न्यूज में वो सब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए, सब नहीं, जो न्यूज में, जैसे नाटो इज वेरी मच इन द न्यूज, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ये बता रहे हैं कि रिचर्ड निक्सन, ये वाली स्टोरी मैंने यहाँ बताया है पूरा, कि जो डॉलर कन्वर्टेबिलिटी एक्चुअली होता था कि $1 इज इक्विवेलेंट टू 0.88 ग्राम ऑफ गोल्ड, ये होता था। इस कन्वर्टेबिलिटी को खत्म कर दिया था 1971 में रिचर्ड निक्सन ने। So there were a lot of sudden steps that were taken during that time. तो ये बता रही उसी टाइप का similar thing is perhaps happening even today also. Donald Trump is putting tariffs after tariffs and all. तो हो सकता है बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस हो, जिस तरह 1971 में when Bretton Woods agreement or when Bretton Woods system was abolished, so a lot of changes happened, a lot of economic changes, gearing shifting gears happened. तो अभी भी something I think उसी तरह का होगा, because Donald Trump is putting a lot of tariff on different countries. तो बहुत सारे मुल्कों पर टैरिफ लगा रहे हैं, तो बहुत सारे ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आने वाली है, दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इसमें मैंने इंटरनेशनल आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की हिस्ट्री वगैरह बताया, यू शुड वॉच इट, है ना, दैट इज व्हाट यू शुड नो। द नेक्स्ट इज पीपल स्टिल वेटिंग टू मूव आउट ऑफ मार्जिन्स। ये जो है एक्चुअली ही इज टॉकिंग अबाउट ट्रांसजेंडर्स, इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया गया था 31 मार्च को। सो इज टॉकिंग अबाउट दैट,
that despite there are legal advances like Transgender person, protection of Rights Act, social stigma continues to be there. अच्छा, अब ये बताओ, please tell me in which judgment Supreme Court said that transgender is a third gender, should be recognized as a third gender. कौन से जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? Tell me. So the name of the judgment is NALSA, National Legal Service Authority versus Union of India case, है ना? Okay. Okay, so ये बता रहे हैं कि सोशल स्टिग्मा इज स्टिल देयर. सोशल स्टिग्मा मतलब वही कि उनको जनरली आसानी से जॉब नहीं मिल पाती. देयर आर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम. It's difficult for them to find a job, whether in a private sector or a government sector. It's difficult for them actually in different. तो यही सब वो बता रहे हैं, ठीक है ना? They feel sometimes bully also, and they are ostracized, social stigma वगैरह, ठीक है? So इस लॉ की तो वीक इम्प्लीमेंटेशन, वो कह रहे हैं कि जो लॉ है उतना स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. So there are a lot of issues of ID cards and also ये सब these the other things he's talking about. NHRC के रिपोर्ट के हिसाब से 92% ट्रांसजेंडर individuals were excluded from economic activities. तो उनको जॉब वगैरह नहीं दिया था, एक्सक्लूड कर दिया था, forcing them in to engage in these works and all. तो ये सब वो बता रहे हैं. That is what the author is talking. Okay, हाँ ना, ये हो गया. To the report, transgender literacy जो 56% है, जबकि national average 74.04% national average है literacy का, और transgender की literacy comparatively less है, 56% है. और इवन केरला जैसे स्टेट में भी 58% ने ड्रॉप आउट कर दिया ड्यू टू bullying, harassment and unsupportive environment. So that is what he is talking about in this article about this, है ना? नालसा वाले मैंने बताया, नालसा मैंने क्लास भी लिया, I have taken this class, और जो जजमेंट है उसका नाम भी है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, where the Supreme Court passed an order declaring that transgender should be declared as third gender. ठीक है? That is what you should be knowing. हाँ, ये शुभांगी राइट, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है? तो नालसा के बारे में मैंने डिटेल बताया भी, प्लीज सर्च दिस, वॉच इट. इसमें फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट होता है, आर्टिकल 39 कैपिटल ए ऑफ डीपीएसपी में मेंशन है. सो उसको इम्प्लीमेंट किया गया नालसा के थ्रू. प्लीज रीड अबाउट इट, ठीक है? फिर उसमें उन्होंने बताया कि बहुत सारे इनिशिएटिव है. आई एम आल्सो ह्यूमन कैंपेन लाइक हम सफर ट्रस्ट हेल्प, दीस आर द कैंपेन्स फॉर द प्रोटेक्शन और टू एलिमिनेट प्रेजुडाइज अगेंस्ट ट्रांसजेंडर्स एंड ऑल. इसी पर उन्होंने आर्टिकल लिखा था. Now let's move on to another article talking about defection. So please tell me which schedule of the Indian Constitution talks about anti-defection law. बताइए कौन सा शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए काम करता है? So मैंने I have taught schedules. आप just search करना schedules of Indian Constitution career launcher, you will get this video. So I have discussed about it. Please tell me that which schedule of the Indian Constitution talks about disqualifying someone because he or she has done defection. अगर कोई एमपी और एमएलए मिनिस्टर बनने के बाद किसी और शेड्यूल किसी और पार्टी ज्वाइन कर ले, उसको कहते हैं डिफेक्शन, और वो एक उसमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एमपी एमएलए को. दैट्स 10th शेड्यूल, ठीक है? मैंने इससे पूरा बताया डिटेल. सो 10th शेड्यूल में प्रोविजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन. अब इसमें होता क्या है? दिस इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर. अगर लोकसभा है तो लोकसभा में जो स्पीकर बैठते हैं वो डिसाइड करते हैं. इफ देयर इज अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, द स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर डिसाइड्स. बट इमेजिन करो कि लेकिन इनके लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है. देयर इज नो टाइम पीरियड फिक्स. तो मान लो किसी ने यहां से जाके इस पार्टी से उस पार्टी में चले गए एंड द स्पीकर इज नॉट टेकिंग एनी डिसीजन. पूरा 5 साल गुजर गया, द एंटायर 5 years इज कंप्लीट. देन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस देयर इज नो मीनिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक है? समझ में आ रहा है ना? अगर मान लीजिए किसी एमपी ने इलेक्शन जीत के या फिर कोई और पार्टी में चले गए और स्पीकर ने कोई डिसीजन नहीं लिया, रिमूव नहीं किया, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया, तो 5 साल पूरा भी हो गया. बोले कि हम बाद में करेंगे, और स्पीकर ने डिसीजन ले लिया और 5 साल कंप्लीट हो गया, एमपी 5 साल तक बने रहे. तो एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब खत्म हो गया ना. सो दैट इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड. जस्टिस बीआर गवई ने कहा भी था कि सुप्रीम कोर्ट एज गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट पावरलेस इफ अ स्पीकर डिसाइड्स टू सिट ऑन एंटी डिफेक्शन प्लीज. मतलब सिट टू सिट मतलब होता है नॉट टेकिंग एनी डिसीजन.
बिकॉज मेरे को टाइम पीरियड बाउंडेड नहीं है। तो अगर स्पीकर चाहे तो कोई डिसीजन नहीं ले, बोले ना वो ना कहे ना हाँ कहे, तो जो बंदा है जिनके खिलाफ एलिगेशन लगा वो एमपी बने रहेंगे अगर दूसरे पार्टी में जाने के बाद भी। You got it? So if a speaker decide not to take any decision, the person who has defected will continue to be MP or MLA for till his term, till the term completes. So that is why the Supreme Court judge said that of course in that case we will take the decision. है ना, उस केस में हम लोग डिसीजन लेंगे, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट है। तो वही बता रहे हैं। तो अभी जो रिसेंटली देयर आर सम इंसिडेंट्स वेयर these things have happened that petitions were filed in Telangana, है ना। So these things you should be knowing. इसी पे जस्टिस बी आर गवई साहब ने कहा था कि yes, if the speaker is not taking a decision, we will take the decision. ठीक है, the judiciary should play the active role and take the decision of disqualifying the person. फिर एक पेज नंबर 8 में आर्टिकल थी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रीचेस कोलंबो। तो बैंकॉक गए थे अभी, है ना। वी हैव डिस्कस्ड दैट ही हैड गॉन टू बैंकॉक फॉर इन थाईलैंड फॉर बिम्स्टेक रीजनल मीटिंग, देन ही हैड गॉन टू कोलंबो द कैपिटल ऑफ श्रीलंका and met the prime minister president of Sri Lanka Anurag Kumara Disainak, ठीक है ना। just remember it, his name, ठीक है। so that is what you should be knowing. Now let me ask this question. Manoj Kumar recently died. He was what? Can you tell me? वो कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते थे? Anyone? ये तो फर्स्ट पेज पे आता है हर जगह। He was an actor, very famous. He died at the age of 87. Who made Bharat a household name, takes his final bow. Okay. Yes, actor. Yes, Konark, you're right. Actor थे वो, बहुत फेमस एक्टर थे। उन्होंने बहुत सारे फिल्म में काम की थी, शोर, कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान, so there are lot of films. Yes, प्रिया, yes, फिल्म डायरेक्टर भी कह सकते हो, है ना, associated with film. He was born in Pakistan modern day because of course at that time there was no partition. तो उनका पुकारो नाम भारत करके भी था ना, so that is what you should be knowing about, है ना। तो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लीजिएगा कि इनकी कुछ फेमस बुक्स वगैरह है, इनकी कुछ गाने वगैरह भी, मेरे देश की धरती सोना उगली बहुत फेमस गाना है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड दिस सॉन्ग। तो ये भी उन्हीं के जमाने में था, उन्हीं के फिल्म में था, दैट इज व्हाट यू शुड नो। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। खैबर पख्तूनख्वा में पैदा होते अहमदाबाद में और डेथ हुई मुंबई में उनकी। He had won Padma Shri, the fourth highest civilian award, और दादा साहब फाल्के अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा उन्होंने जीता, ठीक है। Supreme Court directs Central Empowered Committee to conduct a forest survey on Agastya Malai for encroachment. Agastya Malai तो बॉर्डर पर है, it's a biosphere reserve on the border of Tamil Nadu and Kerala. Biosphere reserve पे मैंने क्लास लिया है, so just go on YouTube and search this biosphere reserve कैरियर लॉन्चर, अपना सर्च कीजिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। मैंने बायोस्फीयर रिजर्व पे क्लास दिया है। अगस्त्य मलाई जो है वो यहाँ पर है, ये केरला है, ये तमिलनाडु, ये केरला है, उसके बॉर्डर पर यहाँ पर अगस्त्य मलाई, ठीक है। और अगस्त्य, हाँ देखो है ना, ये बॉर्डर है, दिस इज द बॉर्डर, ये केरला, दिस इज तमिलनाडु, और यहाँ पर आपको अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। और इसमें मैंने आई हैव टॉट व्हेन आई वाज स्टार्ट टीचिंग अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व कि एक बायोस्फीयर रिजर्व में मल्टीपल नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सकता है, जैसे नैयार नेशनल पार्क, पेपारा है, शेंदुरने है, कालाकात मुदुनथराई टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये सब अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट। तो और एक और चीज न्यूज में था, ये काफी न्यूज में था, कांचा गाची बाउली, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि रिसेंटली न्यूज इज व्हाट, फॉरेस्ट इन हैदराबाद रीजन, है ना। इसमें क्या होता है कि इसको पीकॉक की क्राइम होने की भी आवाज आई। इसमें क्या था कि द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कम अप विद एन आईटी पार्क, तो पूरा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करने के लिए बहुत सारे पेड़ जंगल काटे जा रहे थे। So that is why the forest, the Hyderabad University students were protesting and all. Many of them were उस टाइम पर many people were protesting, काफी हंगामा हुआ। पीकॉक्स की क्राई करने के बाद बहुत सारे वीडियोस आए थे जिसमें पीकॉक्स और जानवर जो है रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मेरा मतलब पेड़ को काटा जा रहा है एक्सेट्रा। So that was in the news, and then the Supreme Court intervened and stopped it. तो ये सब न्यूज में था, है ना, कांची बोली, है ना। तो यहाँ पीकॉक्स वगैरह पाए जाते हैं, that is what you should be knowing. Supreme Court holds Telangana Chief Secretary accountable for felling of trees and all. Okay, है ना। फिर एक और था कि साउथ कोरियन प्रेसिडेंट आउस्ट इम्पीच प्रेसिडेंट क्यून, है ना। कोर्ट आउस्ट इम्पीच, हाँ तो ये आपको पता होगा कि ये अभी कुछ दिन पहले था कि प्रेसिडेंट ये प्रेसिडेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट तो दिसंबर तक थे, लेकिन उनको रिमूव भी कर दिया गया था। फिर 4 अप्रैल को फाइनली उनको इम्पीच कर दिया गया, ठीक है। बट ही वाज एक्चुअली प्रेसिडेंट टिल 14 दिसंबर, उसके बाद वो सस्पेंड कर दिए गए थे टिल लास्ट ईयर, है ना।
तो इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिए थे साउथ कोरिया में. सो हियर इज साउथ कोरिया. लेट मी शो. हियर इज इंडिया. दिस इज साउथ कोरिया. सो हियर इज द प्रेसिडेंट देयर. ठीक है. 14 दिसंबर के बाद उनको हटा दिया गया. उसके बाद ये बने प्रेसिडेंट. देन देखो आप देखो सिंस 14 दिसंबर इन द लास्ट 2-3 मंथ्स वी हैव सीन 1, 2 एंड 3 प्रेसिडेंट. अनडक्सो फिर से बन गए हैं ना. दैट इज व्हाट यू शुड नो. एंड फाइनली इनको इम्पीच कर देगा 4 अप्रैल को, कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप एंड ऑल. ये काफी न्यूज में था. यून सो क्यूर. That is what you should be doing. So this is all about today's class. Please subscribe to the channel, press the like button, share this video. Thank you everyone.